वेलकम बैक। आज एनएलपी में और एक एमसीक्यू रिवीजन की तरह हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ाया गया है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख लेना अगर कोई डाउट्स है तो स्टार्ट करते हैं। A student is working on a large collection of news articles. Before applying any NLP technique, the student combines all documents into one dataset. What is this combination or what is this combined dataset called? आप सोचते रहिए आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। टोकन लिस्ट, सेंटेंस सेट, कॉर्पस या फिर वोकैबुलरी। सही आंसर क्या है? कॉर्पस। While analyzing customers' reviews, a system first breaks the entire text into individual sentences so that each sentence can be processed separately. Which text normalization step is being applied? Tokenization, sentence segmentation, stemming या फिर lemmatization? सही आंसर बी, सेंटेंस सेगमेंटेशन। अब थर्ड क्वेश्चन, in the sentence AI is transforming education, which of the following would be treated as a token during tokenization? Only words, only numbers, words, special characters and punctuations या फिर only meaningful words? आंसर क्या है? वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड पंक्चुएशन, इन सभी को एज अ टोकन माना जाएगा। अब फोर्थ, while analyzing a block corpus, words like is, the, and, of are removed because they appear frequently but at little meaning. These words are called stop words या फिर tokens या फिर keywords या फिर root words. आंसर क्या है? stop words. A researcher is analyzing email data and decides not to remove numbers and special characters. Why is this decision appropriate? Numbers improve grammar, या फिर special characters reduce noise, या फिर email IDs depend on numbers and special characters, या फिर stop words must always be retained. आंसर है email IDs depend on numbers and special characters. और ये कैसे टोकनाइजेशन होता है, हम कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ये सब हमने पहले जाना है। आफ्टर टेक्स्ट प्रोसेसिंग द वर्ड्स हेलो, कैपिटल लेटर में हेलो, ये लोअर केस में है हेलो, आर ट्रीटेड एज द सेम वर्ड बाय द सिस्टम। विच स्टेप मेड दिस पॉसिबल? टोकनाइजेशन या फिर सेंटेंस सेगमेंटेशन या फिर कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस या फिर लिमिटाइजेशन? आंसर है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। नेक्स्ट, अ सिस्टम कन्वर्ट्स प्लेइंग, प्लेड, प्लेयर into play, PLAY, even if the resulting word may not always be meaningful. Which technique is used here? Stemming या फिर लिमिटाइजेशन या फिर टोकनाइजेशन या फिर सेंटेंस सेगमेंटेशन? आंसर क्या है? स्टेमिंग। स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन कब कौन सा यूज़ होता है, ये भी हमने एग्जाम्पल्स के साथ सीखा है। When the word studies is converted into study instead of STUDI, यहाँ पर क्या है? स्टेमिंग होता है तो हमको ये STUDI मिलेगा। Which process is responsible? टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल? आंसर क्या है? लिमिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेवलपर प्रिफर्स अ फास्टर टेक्स्ट प्रोसेसिंग मेथड even if the output words are sometimes not meaningful. Which technique should the developer choose? Lemmatization, stemming, sentence segmentation, bag of words? आंसर क्या है? स्टेमिंग, क्योंकि यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि फास्टर प्रोसेस होना है और यहाँ पर अगर मीनिंगफुल वर्ड ना भी निकले तब भी चलेगा, तो स्टेमिंग में ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है। आफ्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म
so that a machine can process them. Which of the following techniques represents text based on the frequency of words? TF-IDF या फिर वर्ड टू वेक या फिर बोल सकते हैं इसे वर्ड टू वेक्टर, बैग ऑफ वर्ड्स या फिर एनग्राम्स? आंसर बैग ऑफ वर्ड्स। अब थोड़ा केस बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे केस 1 है सोशल मीडिया एनालिसिस। अ डेटा साइंटिस्ट इज एनालाइजिंग ट्वीट्स टू अंडरस्टैंड पब्लिक ओपिनियन। द डेटा सेट कंटेन्स हैशटैग्स, इमोजीज, numbers, URLs, and informal language. The scientist wants the model to focus mainly on the meaningful words while still keeping hashtag like #AI. यहाँ क्वेश्चन क्या है? Which combination of text normalization decisions in most appropriate in this case? इसके लिए कौन सा डिसीजन लेना most appropriate होगा? रिमूव स्टॉप वर्ड्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड हैशटैग्स, या फिर रिमूव स्टॉप वर्ड्स, कीप हैशटैग्स, रिमूव अननेसेसरी स्पेशल कैरेक्टर्स, या फिर कीप ऑल टोकन्स विदाउट एनी रिमूवल, या फिर रिमूव स्टॉप वर्ड्स एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस? इसका आंसर बी है, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, कीप हैशटैग्स, रिमूव अननेसेसरी स्पेशल कैरेक्टर्स। केस 2 मेडिकल रिसर्च कॉर्पस के लिए। अ हॉस्पिटल इज प्रोसेसिंग थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल रिसर्च पेपर्स। एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स एंड द फाइनल प्रोसेस्ड वर्ड मस्ट ऑलवेज बी मीनिंगफुल। ये सेकेंड पॉइंट, मस्ट ऑलवेज बी मीनिंगफुल डिक्शनरी वर्ड्स इवन इफ द प्रोसेसिंग टेक्स लॉन्गर। ये थर्ड पॉइंट, प्रोसेसिंग लॉन्गर हो सकता है मगर मीनिंगफुल डिक्शनरी वर्ड चाहिए। क्वेश्चन क्या है? विच टेक्निक शुड बी प्रिफर्ड फॉर रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर बेस फॉर्म? तो अब इन चारों में सबको आंसर पता ही चल गया, ये है लिमिटाइजेशन। थर्ड केस, न्यू आर्टिकल प्रोसेसिंग, न्यूज़ आर्टिकल प्रोसेसिंग। अ न्यूज़ एजेंसी processes articles where the same word appears in different forms such as सारे कैपिटल लेटर में कोविड, या फिर कोविड लिखा है वर्ड जैसे हम लिखते हैं, जिसे हम सेंटेंस केस भी बोलते हैं, या फिर स्मॉल लेटर में कोविड। द सिस्टम इनकरेक्टली ट्रीट्स देम एज डिफरेंट वर्ड्स। विच मिसिंग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन स्टेप वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम मोस्ट इफेक्टिवली? अब कौन सा है? कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू कॉमन केस। अब आपको थोड़ा सा वेरिएशन पता चल रहा है एमसीक्यू और अगर केस बेस्ड एमसीक्यू आए तब किस तरह से आपको सोचना है। नेक्स्ट केस क्या है? स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ। यहाँ पर क्या लिमिटाइजेशन और स्टेमिंग में कौन सा चाहिए उसमें से हिसाब लगाना है। एन AI startup is building a real-time chatbot where responses must be generated very quickly. Occasional loss of word meaning after affix removal is acceptable. अब तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। Which technique best fits this requirement? आंसर क्या है? डी, स्टेमिंग, बिकॉज इट इज़ फास्टर। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब कर लेना, और ये सही लगे मैंने जो ये शेयर किया है तो ज़रूर एक लाइक कर देना। तो केस 5 क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस। अ लीगल फर्म इज एनालाइजिंग मल्टीपल लीगल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर टू फाइंड पैटर्न्स। द एंटायर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज प्रोसेस्ड एज वन यूनिट हो गया एंटायर डॉक्यूमेंट बिफोर सेंटेंस सेगमेंटेशन बिगिंस। What is the correct term for the collection of documents? Very simple, it's corpus. तो आज के लिए इतना ही, फिर से और एक शेयरिंग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर,